गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हमने एफएमएस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम सीएनसी एंड ऑटोमेशन का सेकंड चैप्टर देखेंगे, कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड इट्स टूलिंग। तो यहाँ पर बेसिकली हम पहली हेडिंग देखते हैं, कटिंग टूल्स फॉर सीएनसी मशीन्स। कटिंग टूल्स आर अवेलेबल इन three basic material type: high speed steel, टंगस्टन कार्बाइड एंड सिरेमिक। तो बेसिकली सीएनसी मशीन में जो टूल बनाने के लिए मटेरियल यूज होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक। हाई स्पीड स्टील इज जनरली यूज्ड ऑन एल्यूमिनियम एंड अदर नॉन फेरस alloys, while tungsten carbide is used on high silicon aluminum, steels, stainless steels, and exotic metals. Ceramic inserts are used on hard sheet and exotic metals. Inserted carbide tooling is becoming the preferred tooling for many CNC applications. For the full utilization of CNC machines, it is essential to pay due attention to this selection of uses of tooling, namely tool holders, cutting tools, and work holding devices. The tools for CNC machines must be quickly changeable, reduce non-cutting time, preset and reset outside the machine, high degree of interchangeability, increased reliability and high rigidity. And second point is, CNC machine, the cutting tools can be classified on the basis of setting up of tool construction and cutting tool material. Now we will discuss its classification on the basis of setting up of cutting tool. बेसिकली इस बेसिस पे हमारे कटिंग टूल तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्रीसेट टूल्स, सेकंड इज क्वालिफाइड टूल्स एंड थर्ड सेमी क्वालिफाइड टूल्स। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल कंस्ट्रक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कटिंग टूल, बेसिकली हम वो कटिंग टूल किस मेथड से बना रहे हैं, इस बेसिस पे हमारे कटिंग टूल तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड टूल्स, सेकंड इज ब्रेस टूल्स, थर्ड इज इंसर्टेड बिट टूल्स। इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स। फर्स्ट इज हाई स्पीड स्टील, सेकंड हाई कार्बन स्टील, कास्ट एलॉय, सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक्स, बोरॉन नाइट्राइड, डायमंड और सियालोन। ये बेसिक मटेरियल है। इसके बाद हम यहाँ पर अब एक एक करके इनको देखते हैं, इनका क्लासिफिकेशन। तो इसमें से पहला आता है प्रीसेट टूल्स। तो इसमें क्या होता है, द सेटिंग ऑफ टूल्स इन एडवांस एट प्लेस व्यू फ्रॉम द मशीन टूल और ऑफलाइन इन स्पेशल होल्डर इज नोन एज प्रीसेट टूल्स। A presetting device is used to preset axial and radial position of the tool tip on the tool holder. Once this is done, the tool holder is ready to be mounted on the machine and produce a known dimension. Presetting devices to various level of sophistication are available, like optical projector, tool length and tool diameter compensation facilities available in the preset CNC machines have brought down the importance of presetting. Since the generation of actual geometry is taken care of by the CNC part program, which is essential the coordinates through which the cutting tool still moves. It is important to know actual dimension of the tool when it is placed in the spindle, the relationship of the tool which reference to the
actual point to be programmed in a CNC part program is the tip of the tool, whereas the axis will be moving the respect to a known point in the spindle. Example, the center of the spindle in case of machining centers to become therefore necessary to know precisely the deviation of the full tip from the gaze point to the spindle. तो बेसिकली हम जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारा मशीन होम है, ये इसकी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम नीचे देख पा रहे हैं ये प्री सेटिंग ऑफ टूल है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं क्वालिफाइड टूल। बेसिकली क्वालिफाइड टूल क्या होते हैं? टूल विच fits into the location on the machine where its cutting edge is accurately positioned within the closed limits related to a specified datum on the tool holder or slide is known as qualified tools. The cutting tools satisfy the following requirements. First is tools need not to measure individually. Second is no presetting devices used. That is the dimension of the tool holder which are fixed and known. Fourth is setup time is reduced. Control dimensions of the tool are nominal and fixed. Higher control on resharpening. Example tools, trimmers. अगला point, cutter for greater size control. Example end mills, trimmers. Next point आता है chip breaking facilities incorporated in tool, and last point improved design. The qualified tools with the holders on, यहाँ पर जैसे कि आप देख ये ड्रिल्स है जो कि एक होल्डर के साथ है। इस प्रकार के टूल क्वालिफाइड टूल से के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेमी क्वालिफाइड टूल्स। बेसिकली ये क्या होते हैं कि इनको किसी एडजस्टेबल स्क्रू की सहायता से एडजस्ट किया जाता है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The qualified tools which can be adjusted to the dimensions by using several adjustable buttons on the tool shank are known as semi-qualified tools. These tools demand regular maintenance and calibrated for accurate dimensioning. इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड टूल्स। जैसा कि यहाँ पर आपको ड्रिल बिट दिखाई गई है, इस प्रकार के टूल होते हैं, सॉलिड टूल्स कहलाते हैं। Solid tools are usually made of high-speed steel or high-carbon steel. These tools are used on high speed with sufficient quantity of cutting fluid to get good surface finish and longer tool life. इसके बाद अगला पॉइंट आता है ब्रेस टूल्स। A forced shank of high-strength steel with belt of high-speed split tungsten carbide steroid braced to the shank on the cutting edge. इसके बाद अगला आता है इंसर्टेड टूल बिट। बेसिकली ये क्या होता है? The tools with indexable insert of holder and special grade carbide or ceramic materials, a wear resistance layer of titanium nitride and titanium carbide is coated on the inserted reduce the cost of tools. Insert can be easily removed from the tool holder, so tool changing time and cost of machining are less. इसके बाद हम बात करते हैं हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील इज कार्बन स्टील to which alloying element like tungsten, chromium, vanadium, cobalt and molybdenum to be added to increase their hardness and wear resistance. इसलिए जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है, हम इसमें कुछ alloying element अलग से ऐड करते हैं। वो alloying element इस कार्बन स्टील की मैकेनिकल
प्रॉपर्टीज को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो वो एलॉइंग एलिमेंट टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, कोबाल्ट एंड मोलिब्डेनम। इसके बाद हम देखते हैं हाई कार्बन टूल स्टील। हाई कार्बन टूल स्टील इज suitable for low cutting speed and low temperature. The hardness of tool steel is determined by the carbon content. इसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट अलॉय। बेसिकली ये क्या होते हैं? This is a non-ferrous alloy and it gives high machining performance than that of high speed steel. Its hardness and toughness are high at high temperatures. इसके बाद अगला आता है सीमेंटेड कार्बाइड। इट कंटेन्स 5% कार्बन, 13% कोबाल्ट एंड 81% टंगस्टन। दिस टूल इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न कॉस्टली मशीन्स एज टिप टूल। द टूल सेटिंग टाइम इज रिड्यूस्ड। इसके बाद अगला आता है सिरेमिक्स। बेसिकली सिरेमिक्स क्या होते हैं? It can be used for higher cutting speed, superior surface finish, and great machining flexibility. The aluminum oxide, boron carbides, silicon carbides, titanium carbides, and titanium carbide are known as ceramics. Basically, जो aluminum oxide है, boron carbide है, silicon carbide है, titanium borides है, एंड टाइटेनियम कार्बाइड्स, ये सभी सिरेमिक के रूप में जाने जाते हैं। तो हम यहाँ पर पहले की बात करते हैं बोरान नाइट्राइड। What will be the property of boron carbide? Its first point is high wear resistance. Second is used for machining hardened steel and high temperature alloy. Next is diamond. Properties of diamond: low friction and high wear resistance, good cutting edge. Single crystal diamond is used to machine copper to a high surface finish. इसके बाद हम बात करते हैं सियालॉन। इसके लिए क्या होता है? इसका यूज हम यूज्ड फॉर मशीनिंग एरोस्पेस एलॉयज। जो भी मिश्र धातुएं एरोस्पेस की कंपोनेंट बनाने में यूज होती है, उनकी मशीनिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हम इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं, डिजाइन फीचर फॉर सीएनसी टूलिंग। In general, the following points are to be considered while designing of CNC machine tooling. तो बेसिकली जब सीएनसी टूलिंग की डिजाइन करते हैं तो इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है टू गिव हाई एक्यूरेसी। सेकंड इज द वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। थर्ड इज इंटरचेंजेबिलिटी टू प्रोड्यूस सेम एक्यूरेसी। फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ, rigidity of cooling to withstand cutting forces. Rigidity to transmit the power at higher speed. Quick changing of tool to keep the downtime minimum. तो ये सभी पॉइंट हैं जब हम किसी भी सीएनसी टूल का डिजाइन करते हैं तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनका डिजाइन करते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टूलिंग फॉर सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन की टूलिंग को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? तो उनमें से पहला फैक्टर आता है टाइप ऑफ सीएनसी। हमारी सीएनसी किस प्रकार की है। सेकेंड इज टाइप ऑफ कंपोनेंट एंड प्रोसेस परफॉर्म ऑन इट। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, हमारा कंपोनेंट किस टाइप का है और उनमें से कौन सा किस प्रोसेस को परफॉर्म किया जा रहा है। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ एलसी प्रोग्राम। फोर्थ इज मटेरियल ऑफ जॉब। फिफ्थ इज प्रोडक्शन शेड्यूल। सिक्स इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस। सेवेंथ इज ट्रेनिंग एंड सर्कुलेशन इफिशिएंसी। और एट्थ इफिशिएंसी ऑफ पार्ट प्रोग्राम। तो इस प्रकार से ये सभी
फैक्टर हैं जो कि सीएनसी मशीन के टूलिंग को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम अगली स्लाइड देखते हैं, पार्ट ऑफ सीएनसी मशीन। तो बेसिकली हमारे सीएनसी मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हम उन पार्ट्स को देखते हैं। तो इनमें से पहला पार्ट आता है सर्वो मोटर, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आता है बॉल स्क्रू, इसके बाद अगला पार्ट आता है हाई स्पीड स्पिंडल, फोर्थ इज hardened slide ways, fifth is control panel, sixth is hydraulic servo motor, and seventh and last डीएमसी मोटर, डीसी मोटर। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कि जो हमारा सर्वो मोटर होता है बेसिकली वो क्या होता है। सर्वो मोटर कम भार की एसी या डीसी मोटर है। इसकी आवश्यकता को इनपुट करंट या वोल्टेज को रेगुलेट करके नियंत्रित किया जाता है तथा इनपुट करंट या वोल्टेज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत शीघ्र होती है। जिस आरपीएम पर मोटर को घूमना होता है वह फीड की दर पर निर्भर करती है, जो प्रोग्राम के द्वारा मशीन को सूचित करती है। मशीन नियंत्रण कंप्यूटर प्रोग्राम को पढ़ने के बाद वांछित फीड की दर प्राप्त करने में मोटर को भेजी जाने वाली आवश्यक करंट की मात्रा ज्ञात करेगी तथा वह यह भी सुनिश्चित करती है कि मोटर को चलने के लिए उतना ही करंट स्लाइड होने तक प्राप्त हो रहा है या नहीं। सीएनसी मशीन का एक अन्य मुख्य लक्षण विभिन्न फीड की दर पर दो या अधिक स्लाइड पर एक साथ चलने की योग्यता है। यह सीएनसी की योग्यता है जो कि जटिल आकारों को बिना किसी कठिनाई के मशीनिंग करना संभव बनाती है। इसके बाद हम इसके सेकेंड पॉइंट के बारे में देखते हैं, बॉल स्क्रू। तो वो बेसिकली हमारा बॉल स्क्रू क्या होता है, तो यहाँ पर हम बॉल स्क्रू के बारे में देखते हैं। यह विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ एक बॉल बेयरिंग प्रकार का लीड स्क्रू होता है। यह फ्रिक्शन तथा बैकलेस की मात्रा कम करता है। यह टूल को 1 माइक्रोन की परिशुद्धता तक स्थिति निर्धारण में सहायक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई स्पीड स्पिंडल। बेसिकली ये क्या होता है, सीएनसी मशीन के स्पिंडल परंपरागत मशीनों की अपेक्षा बहुत अधिक स्पीड पर चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यह कार्बाइड तथा अन्य कटिंग टूल्स की पूरी योग्यता के उपयोग में संभव बनाता है। यह मशीन समय को कम करने में सहायक होती है। इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं, हार्डेंड स्लाइड वेज। अब हम इसके बारे में देखते हैं बेसिकली ये क्या होता है। सीएनसी मशीन के स्लाइड वेज पूरी तरह हार्ड लगभग 60 HRC तथा परिशुद्ध ग्राइंड किए हुए होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना किसी स्लिप इफेक्ट के स्मूथ तथा लगातार मूवमेंट का प्रबंध करने में ये एंटी फ्रिक्शन मटेरियल के साथ कोटेड भी होते हैं। इनमें रिसर्कुलेटिंग बॉस रोलर्स का भी प्रबंध होता है, से लीनियर मोशन गाइड भी कहते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल पैनल देखते हैं। ये क्या होता है, कंट्रोल पैनल किसी सीएनसी मशीन के पार्ट का पार्सल होता है। इसमें प्रोग्राम को संपादन करने तथा इनपुट के लिए कीज होते हैं। एक टिपिकल कंट्रोल पैनल को हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल पैनल के बाद हम देखते हैं हाइड्रोलिक सर्वो मोटर का। तो यहाँ पर जो हाइड्रोलिक सर्वो मोटर होता है एक वेरिएबल स्पीड वाला मोटर होता है। यह विद्युतीय मोटर की अपेक्षा अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। यह मोटर अधिक दक्षता वाली मशीनों में यूज होती है। ये मशीनें विद्युतीय तथा न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो कि फ्लूइड की मात्रा को कंप्रेसर तक ले जाने में प्रयुक्त होता है। यह मोटर जब आवश्यक हो तभी प्रयुक्त करते हैं, किंतु 25,000 आरपीएम की
रोटेशनल गति होना आवश्यक। इसके बाद हम बात करते हैं डीसी। इस तरह की मशीन अपचाई नियंत्रित गति में यूज होती है। यह एक वेरिएबल स्पीड वाली मोटर है तथा आरोपित वोल्टेज पर घूमती है। थायरिस्टर के प्रयोग से हम एसी तथा डीसी परिवर्तन करते हैं तथा आवश्यक स्पीड प्राप्त। डीसी सर्वो मोटर में विभव मापांक द्वारा गति कंट्रोल हो जाती है। इस प्रकार से हमने सीएनसी मशीन के पार्ट देखे। अब हम इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस फॉर सीएनसी मशीन। तो अब हम इनके बारे में देखते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं इन दी सीएनसी मशीन्स। Features are required to locate and hold the workpiece while machining. The work holding devices should have the following uniqueness. First is work holding devices must have required accuracy and must have matching references with the reference system. Point B is work holding devices are allowed to perform a number of operations on different phases in a single setting. Next point is work holding devices must enable quick loading and unloading. Next point is work holding devices must be full proofing to avoid incorrect loading of the job. Next point is work holding devices must be sufficient rigidity of fully withstand the cutting forces. Next point is work holding devices must be safe in use and loading and unloading. And next point is work holding devices must have a sufficient of clamping forces for use of full roughing cuts. And the last point is work holding devices must be simple in construction maximum as possible. इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेटिक पैलेट चेंज ओवर सिस्टम आर यूज्ड इन द मॉडर्न CNC machines. These pallets simply move, interchanging their positions on the machine table. While machining is being done on a job kept on the pallet, the other pallets are accessible to the operators for clamping and unclamping raw material or the finished product. This saves a lot of material handling and setup time, resulting in higher productivity. इस प्रकार से हम वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में देखते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या लक्षण होने चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो बेसिकली ये क्या होता है, द CNC machines are designed to perform a number of operations in a single setting of the job. A number of tools may be required for making a complex part. In a manual machining, the tools are changed manually whenever required. In a CNC machine, tools are changed through program instructions. The tools are fitted in a tool magazine or drum. When a tool needs to be changed, the drum rotates to an empty position, approaches the old tool and pulls it. Then it again rotates to position the new tool, hit it, and then react. This is a typical tool changing sequence of an automatic tool changer. Basically, automatic tool changer को short में ATC भी कहते हैं. The concept of ATC is that the range of tools for the specific job shall be made available for automatic selection and positioning. ATC can be basically two types. First is drum type and second is chain type. As you see in this diagram, first diagram, this is drum type. जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पहला डायग्राम है यहाँ पर आपको ड्रम टाइप के टूल चेंजर दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपको टू इमेजेस दिखाए गए और जो सेकेंड टाइप है इसके नीचे ये चेन टाइप टूल चेंजर है। तो हम
पहले डिस्कस करते हैं ड्रम टाइप टूल चेंजर। फॉर होल्डिंग स्मॉल नंबर ऑफ टूल्स यूजुअली नॉट मोर देन 30 stored on periphery of drum and tool such speed is faster। तो बेसिकली जो स्मॉल नंबर ऑफ टूल्स का जहां पर यूज करना होता है वहां पर हम ड्रम टाइप टूल चेंजर का यूज करते हैं। यहाँ पर टूल्स की मैक्सिमम नंबर 30 हो सकता है। यदि हमें इससे अधिक टूल यूज करने हैं तो फिर वहां पर चेन टाइप टूल का यूज करेंगे। फॉर मोर नंबर ऑफ टूल्स 40 और मोर, यहाँ पर 40 या इससे अधिक अगर हमें कहीं पर टूल यूज करने हैं तो वहां पर चेन टाइप टूल का यूज करेंगे। As soon as that tool selection command is received by the system, the selected tool comes to a fixed place known as tool change position. The selected tools is transferred to the expander from magazine after the previous tool is transferred to the magazine from expander. This is called tool change cycle। अब हम आगे देखते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर एडवांटेज। एटीसी की क्या एडवांटेज है, तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखते हैं। लाइन्स चेंज्ड इन सेकंड इंस्टेड ऑफ आवर्स, increase operator safety by changing tools automatically, change tools in seconds for maintenance and repair, increasing flexibility, heavy and large multi-tools that are automatically changed। Now we will discuss about machine guard। कि बेसिकली जो मशीन में गार्ड यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के मशीन गार्ड होते हैं। तो इसमें से पहला आता है मशीन गार्ड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्डस बाय प्रोवाइडिंग अ कवरिंग। जो गार्ड होते हैं वो मशीन के मूविंग पार्ट को कवर करके हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। द कन्वर्टिंग creates a barrier, shielding workers and preventing them from touching and getting caught in moving part। They also protect from spark, flame, debris and splashing chemicals। अब हम इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनमें से पहला टाइप आता है फिक्स गार्ड। Stationary, therefore difficult to remove, plexiglass shield or wire barriers can be used where visible is important। Second is adjustable guard। Movable guards use where fixed guard would interfere with machine friction, must be manually positioned, therefore human error can be lead to an accident। And third is self adjusting guard। इस प्रकार के जो गार्ड होते हैं वो खुद को स्वयं ही एडजस्ट करते हैं। मूव ऑटोमेटिकली टू अलाउ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस टू बी प्रोसेस्ड विदाउट रिक्वायरिंग कांस्टेंट पोजीशनिंग। इसके बाद हम अगली स्लाइड देखते हैं, मशीन सेफ्टी डिवाइसेस। किसी भी मूविंग मशीन में कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस होती है। सेफ्टी डिवाइसेस डोंट यूज फिजिकल बैरियर्स, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स बाय देयर स्टॉपिंग अ मशीन और restricting machine operators movement if they get too close to a hazardous area। They tend to be employed in situations where adjustable or self-adjusting guard might get in the way। Most protects of workers' entire body by quickly shutting down and machinery when hit। Other only protect the hands, thereby keeping a machine from starting if a hand is the wrong place and restricting the machine operator's hand and arm movement।
तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारी सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं वो कितने प्रकार की। तो इनमें से पहली सेफ्टी डिवाइसेस आती है इंटरलॉक्स। तो बेसिकली हम इंटरलॉक्स के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है। वर्क ऑफ कंजक्शन विद मशीन गार्ड, therefore can't be used in a situation where guards are not practical. If an interlock detects that a guard is not in place, it trips a relay which and set off the power, meaning that unguarded machinery cannot be used. तो बेसिकली इंटरलॉक होते हैं, अगर इंटरलॉक को लगता है कि नहीं जो हमारे गार्ड है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये क्या करता है, ये वहां पर शट ऑफ कर देता है और हमारी मशीन भी बंद हो जाती है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, रिलायबल, easy to work with, can be used in many situations, uses multiple beams of light, which if broken trip a switch and cut off the power off. इसके थर्ड इज प्रेशर सेंसिटिव डिवाइसेस, if a worker touches a wire or cable, it trips a switch and stops the machine. Useful in areas that curve or bend as can run through eyelets. Used for conveyor lines as can be extended to desired length. इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रेशर सेंसिटिव मैट्स, retrain devices, pullback devices, two-handed strips। इस प्रकार से ये सारी मशीन सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। अगर हम इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली सेफ्टी डिवाइस होती क्या है और इनके प्रकार, और इनमें से किसी भी चार का हम डिटेल से पढ़ लें, बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट। इसके बाद हम आगे देखते हैं एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ अ टूल। तो बेसिकली इसमें देखते हैं क्या होता है। There will a separate supervisor for each of areas discussed in figure in a larger shop and a manager to preside over the entire department, whereas a smaller shop will have either a supervisor or manager administrating the entire operation. Irrespective of the management structure, the functions are basically summed these 6 types. First is policy and decision making, management of each group, job assignment, NC personnel and training, coordination with other department and safety coordination। इस प्रकार से हम आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब हमारे सेकंड चैप्टर में 1 या 2 टॉपिक बचे हुए हैं, अदरवाइज हमारा सेकंड चैप्टर भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद हमारे जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम चाह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर, 10 से या 12 दिन में हमारा सीएनसी पूरी तरह से खत्म हो जाए, सीएनसी एंड ऑटोमेशन। इसके बाद हम अगला टूल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे।